10 ईयर पेपर लेंगे तो 10 ईयर पेपर में हर साल मतलब बिना इंटरप्शन बिना उसके हर साल इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं और इसमें मेनली जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ती हैं। तो ये बेसिकली आसान चैप्टर है। अगर आप इसको ढंग से करेंगे तो ये आपको काफी आसान लगे। तो अभी कितने लोग हैं? 46 है, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या गया। इसमें आपके क्वेरीज एक भी नहीं है मेरे पास पिछले उसमें, तो क्वेरीज नहीं है इसलिए 49, 52 एपिसोड। ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब थोड़ा बेटर हो गया। ये पहली बात, हम अपने रेफरेंस के लिए जो बुक इस्तेमाल कर रहे हैं वो जे.आर. मोंगा और राज बहादुर की किताब है, वो हम फॉलो कर रहे थे। जे.आर. मोंगा एंड राज बहादुर, ये किताब हम फॉलो कर रहे हैं। इसी किताब से ही हम मेनली कर रहे हैं। हमारा ये यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में ये हमारा चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अमलगामेशन, मर्जर। मेरा ख्याल है आप सब मर्जर नाम से फैमिलियर होंगे। मर्जर ऑफ 2 और मोर कंपनी। मर्जर जो होता है, the 2 companies are merged together, they are brought into, they are made one company. So we have the merger, and in merger we have one part called internal reconstruction. What generally happens is that a company has become over a period of time a loss making company. The company is incurring losses over a period of time. Now what happens is, over a period of time, these losses accumulate, and in the old balance sheet before 2013, they were shown on the asset side.
losses were shown on the asset side. After 2013, the balance sheet format has changed. The Companies Act 2013 has given a new format of the balance sheet. Now, negative surplus, money loss. Negative surplus means loss. Now, this negative surplus is shown. Negative surplus is shown in the heading reserves and surplus minus, and it is taken to shareholder funds. So in shareholder funds we have share capital, reserves and surplus minus करके हम दिखा देते हैं. अब कंपनी लॉस में चल रही है. अब जब कंपनी लॉस में होगी, कंपनी के डिवेंचर्स हैं, उन पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, interest on loan is a charge. It is deducted from income while calculating net profit of the company. Now, these accumulated losses ultimately reduces the value of each share. So the company is having losses, 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 and losses. I think this point is clear. Now, what company does is, when company is having continuous losses, market value of its share decreases. On the stock exchange, the value of the share is also decreased. Now, why a company is incurring losses? Maybe its product is not accepted in the market. Its product is not sold in the market. The company is using old technology. The assets are old. They are outdated. So many reasons. Because of which the company is not earning. Not to modernize it, to change the machinery, to change the technology, the company needs the money. Now the company approaches shareholder. Now the company is already a loss-making company. The shareholders may not give money to the shareholder, money to the company. The company asks for loan from the bank. The bank find out that the balance sheet is already showing a loss. They will not give loan. So the company, so there is a problem. What happens is that the company is finding it very, very, very difficult to raise money from the market. It becomes rather impossible for the company to get the money. And what happens ultimately that the company is wound up. कंपनी खत्म हो जाती है. अब कंपनी खत्म होती है तो रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम लाइक एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट हो जाती है. So what government has done is the government has permitted certain measures to be taken by the company for making this sick company at least to run. Now in that case, the losses are to be wiped out. The losses are to be wiped out. The losses are to be written off. The company is having losses, losses and losses over a period of time. Like I'll show you. Like this is the balance sheet that you are having. This is a trial balance of a company. Now the company is having a loss. Finally, we have more on this. We have many companies. I've taken many balance sheets where you will find out that the company is
Like this is the balance sheet that you are having. You are seeing reserves and surplus. Surplus account debit balance 4,40,000. Moreover, company is having asset like goodwill. A loss-making company will not have any goodwill. So this asset is also a loss. Similarly, plant and equipment may be old, it is overvalued. So it becomes a problem for the company. So what company does is, company reconstruct or change the capital structure of the company. Now we are finding out, we'll see how the company is doing that. Now for that purpose, we have the chapter called internal reconstruction. And now I'm starting with it. You will have internal reconstruction of company. Internal reconstruction of company. Now I'm following the book called, ये देखिए नाम लिखा हुआ है, J.R. Monga and Raj Bahadur, and the other book is by Dr. Bhushan Kumar Goel. There are two books that we have. Fundamentals of Corporate Accounting by J.R. Monga. Publisher is MKM Publishers Private Limited. And the second is Corporate Accounting by Dr. Bhushan Kumar Goel. It is from Taxman Publication. So first, the name of the book is clear. So I am taking basically questions from J.R. Monga. One thing. So I think this is clear. Now I am starting. It says internal reconstruction is concerned with complete reconstruction of financial position of a loss-making company. Now what happens is, there are two ways of correcting a loss-making company. There are two ways of correcting a loss-making company. One, to wind up, you have to listen very carefully. पहला, to wind up का मतलब to liquidate. To liquidate का मतलब कंपनी को खत्म कर देना, कंपनी को लिक्विडेट करना. जैसे आपने पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन पढ़ा था, डिसोल्यूशन फर्म का होता है, कंपनी के केस में वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन होता है. तो हम कंपनी को लिक्विडेट करते हैं. तो हम क्या करते हैं? कंपनी को लिक्विडेट करते हैं. अब कंपनी को दो तरीके से, तो एक तरीका क्या है, कंपनी को लिक्विडेट कर दिया, यानी कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया. वाइंड अप करके रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया और पार्टनर की जगह शेयर होल्डर अकाउंट बना दिया, और जो भी लॉसेस हैं वो शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और सारी एसेट्स और लायबिलिटीज, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज एक नई कंपनी फॉर्म करके, दोबारा बोल रहा हूं, एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जाती है, एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जाती है, बिल्कुल ऑल टुगेदर एकदम नई कंपनी रजिस्टर कराई जाएगी. उस नई कंपनी को पुरानी कंपनी, उस नई कंपनी को पुरानी कंपनी के एसेट और लायबिलिटीज रिवाइज्ड वैल्यूज पे बेच दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. तो कंपनी में जो भी लॉसेस एसेट साइड पे थे, वो लॉसेस शेयर होल्डर अकाउंट में चले जाते हैं, और जो एसेट्स नई कंपनी में ट्रांसफर करी जाती हैं वो रिवाइज
मार्केट वैल्यू पे करी जाती है और उसमें जो भी लॉस होता है वो सारा लॉस शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सारा लॉस ट्रांसफर हो गया। तो जब नई कंपनी के पास क्या होगा, जब नई कंपनी की बुक्स हम बनाएंगे तो उस नई कंपनी में सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगे और एसेट और लाइबिलिटीज भी रिवाइज्ड वैल्यूज पे होंगे। एसेट और लाइबिलिटीज भी रिवाइज्ड वैल्यू पे होंगे, नई वैल्यू के ऊपर होंगे, मार्केट वैल्यू के ऊपर होंगे। नई कंपनी के बुक्स में कोई लॉस नहीं होगा। और इस केस में इस तरीके से नई कंपनी बना ली। पर इसमें क्या होता है, एक पुरानी कंपनी लिक्विडेट करके नई कंपनी बनाती है, प्रोसीजर लंबा होता है, लेंथी प्रोसीजर होता है। तो क्या किया जाता है, एक दूसरा तरीका अडॉप्ट किया, उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये लॉसेस को राइट ऑफ किया जाता है। तो जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही बदल दिया जाता है। और ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कंपनी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए जो भी स्कीम बनाएगी, कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए जो भी स्कीम बनाएगी, वो स्कीम पहले शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे और शेयर होल्डर जब अप्रूव कर देंगे तो उसको उस स्टेट जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, दोबारा बोल रहा हूँ, जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट में कोर्ट में सबमिट करी जाती है। और जब कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि ये रिकंस्ट्रक्शन पब्लिक इंटरेस्ट में है तो उसकी परमिशन दे दी जाती है और स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो ये स्कीम बनाई जाती है, प्रॉपर एक पूरी स्कीम होती है, वो स्कीम बना करके दी जाती है। अभी कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बदलते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज कंसर्न विद complete reconstruction of financial position of a loss making company in order to write off losses and overvaluation of assets. An arrangement is made by the company with shareholders, debenture holder, creditors and other liabilities to reduce their claim. उनका क्लेम हम रिड्यूस करते हैं and utilize it, जो हमने क्लेम रिड्यूस करा, जो क्लेम हमने लायबिलिटी साइड पे रिड्यूस करा, उससे हमको कुछ प्रॉफिट हो जाता है और उसको करने के लिए मुझे आपने क्लेम राइट ऑफ करे हैं, जो क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करी है, डिवेंचर होल्डर्स की वैल्यू कम करी है, वो सब हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग ऑफ लॉसेस। अब होता क्या है कि जब आप बुक्स में, जब कोई भी कंपनी बुक्स में लायबिलिटी को कम करेगी तो इट विल अमाउंट टू प्रॉफिट इन द बुक। रिडक्शन इन क्रेडिटर की वैल्यू कम करेंगे, आप सब जानते हैं, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ है। क्रेडिटर की वैल्यू कम करेंगे तो प्रॉफिट हो जाता है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, एसेट को कम करेंगे तो लॉस हो जाएगा। ये सब आपने खूब पढ़ा हुआ है। तो आप क्या करते हो, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी लायबिलिटीज को रिड्यूस करेगी एक एक करके, और वो लायबिलिटीज को रिड्यूस करके कंपनी जो प्रॉफिट होगा बुक्स में उसको लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करेगी। आप कहोगे कंपनी क्या ये अपने आप कर सकती है? क्या कंपनी अपनी मर्जी से जिसको जैसे मर्जी से करने, ऐसा नहीं होता। अगर क्रेडिटर कम करते हैं तो क्रेडिटर की परमिशन से होते हैं, डिवेंचर कम होते हैं तो डिवेंचर होल्डर की परमिशन से होते हैं, इनकी मीटिंग बुलाई जाती है। शेयर्स की वैल्यू कम करनी है तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी। सब चीजें जिनका भी आप कंपनी क्लेम करेगी, बैंक का क्लेम कम करना है तो बैंक से बात करेंगे, बैंक से नेगोशिएट करेंगे, बैंक जो भी रिडक्शन अलाउ करेगा, जो भी पैसे कम करेगा, दैट कंपनी विल यूटिलाइज। तो इस तरीके से हर स्टेक होल्डर से कंपनी बात करती है और हर स्टेक होल्डर से बात करके कंपनी क्या करती है, एन अरेंजमेंट मेड बाय द कंपनी विद द शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर
to reduce their claim. उनका claim reduce करते हैं and utilize it for the purpose of writing of losses and overvaluation of assets. अब second part, why there is a need for internal reconstruction? Now it says overvaluation of assets. पहला point है overvaluation of assets. और overvaluation. अभी यहाँ पे overvaluation का मतलब क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए. यहाँ पे overvaluation का मतलब क्या है? overvaluation का मतलब है कि कंपनी ओवरवैल्यूएशन का मतलब है कि हमारी जो एसेट बैलेंस है वो एसेट जो वैल्यू एसेट की बैलेंस शीट में दिखा रखी है वो एसेट उनकी रियल वैल्यू से ज्यादा है. ये होता कैसे है? कंपनी ने एसेट खरीदी. अभी आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे अगले साल, अगली टर्म में सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन के रेट्स वगैरह बताए गए हैं. अब कंपनी ने क्या किया? डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दिया. अब अगर कोई कंपनी डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा देती है तो होता क्या है कि एसेट की वैल्यू कम हो जाती है और वो थोड़े टाइम के बाद उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है और बुक्स में ज्यादा दिखाते हैं. लेकिन अगर कंपनी ने डेप्रिसिएशन शुरू के बिगिनिंग एसेट खरीदा 2017 में, एसेट खरीदा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एसेट खरीदा 2017 में, 2017, 18, 19, 20, 21, इन 5 साल में कंपनी ने जो डेप्रिसिएशन लगाना था वो डेप्रिसिएशन कम लगा दिया. मान लीजिए 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा दिया. 5 साल में 50% लगाया. कंपनी ने एसेट खरीदे 10 करोड़ के. कंपनी ने एसेट खरीदी 10 करोड़ की. 5 साल में उसकी वैल्यू 10% के हिसाब से 10 करोड़ की एसेट खरीदी. 1 करोड़ रुपए साल का डेप्रिसिएशन लगा रही है कंपनी 10% के हिसाब से. 5 साल में 5 करोड़ का डेप्रिसिएशन होगा, वैल्यू दिखाई 5 करोड़. पर पता लगता है कि कंपनी की जो एसेट है ये सिर्फ 1 करोड़ की स्क्रैप बिकेगी. अब बुक्स में 5 करोड़ दिखा रखी है आपने, बुक्स में 5 करोड़ दिखा रखी है, जबकि उसका रियल वर्क 1 करोड़ है. तो ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट हो गया. तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट कब होता है? चार्जिंग लेस amount of depreciation in the initial year or purchase of assets in the boom period. बूम पीरियड माने बहुत महंगाई थी, बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़े हुए थे, कंपनी ने उस पीरियड में कोई एसेट खरीद ली, तो इसको बोलते हैं परचेज ऑफ एसेट इन द बूम पीरियड. तो कंपनी ने वो एसेट लिया. अब ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट है, उसको कम करना है. दूसरा एक्यूमुलेटेड लॉसेस. अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, फिक्टिशियस एसेट जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ नहीं हुए हैं, नेगेटिव सरप्लस है माने पीएनएल अकाउंट. नेगेटिव सरप्लस मींस डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट. वी आर शोइंग गुडविल whereas it is carrying no value. So these are certain losses which are to be written off. Then sometimes what happens is that the company is having overdue outsiders liability. Overdue का मतलब आप सब जानते हैं. overdue का क्या मतलब होता है? overdue का मतलब होता है कि कंपनी की, overdue का क्या मतलब होता है?
ओवरड्यू का मतलब होता है कि कंपनी की लायबिलिटी ड्यू हो चुकी है लेकिन उसका पेमेंट टाइम से नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ टाइम से? क्योंकि कंपनी के पास कैश बैलेंस नहीं है, कंपनी के पास कैश शॉर्टेजेस है, तो उस वजह से ओवरड्यू आउटसाइडर्स लायबिलिटी हो गई। और जब आउटसाइडर्स की लायबिलिटी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इन सबकी वजह से शेयर कैपिटल इन्फ्लेट हो जाती है। अब आपको लगेगा सर आपने क्या बोला, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेटेड शेयर कैपिटल क्या होती है? अब कंपनी की शेयर कैपिटल है, अब मैं छोटी फिगर ले रहा हूँ, कंपनी का शेयर कैपिटल है 1 करोड़, ये लायबिलिटी साइड पे दिखाया हुआ होता है। कंपनी के लॉसेस है 60 लाख, 1 करोड़ की शेयर कैपिटल और 60 लाख के लॉसेस हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी की शेयर कैपिटल 40 लाख ही बची, पर हम उसको बुक्स में 1 करोड़ दिखा रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी की शेयर कैपिटल है 1 करोड़ रुपए। क्या है? कंपनी की शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपए है। दूसरा, कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेट का मतलब पिछले कुछ सालों के लॉसेस मिला करके 60 लाख के। अब 1 करोड़ की कैपिटल, 60 लाख लॉसेस, तो 40 लाख की शेयर कैपिटल दिखाई जाएगी। अब 40 लाख की शेयर कैपिटल कंपनी शो कर रही है। अब बुक्स में तो 1 करोड़ ही है, बट है कितना एक्चुअली? 40। तो इन्फ्लेटेड शेयर कैपिटल। अब ये हमको क्लियर हुआ, एक चीज हमको समझ में आई कि कंपनी जो है वो एक लॉस मेकिंग, ध्यान में रखिएगा, ब्रीफ में, नट शेल में, कंपनी इज ए लॉस मेकिंग कंपनी। द कंपनी इज ए लॉस मेकिंग कंपनी। अब इस लॉस मेकिंग कंपनी के लॉसेस को हमें राइट ऑफ करना है, और उन लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए हमें लायबिलिटीज को रिड्यूस करना होता है। तो कैसे करते हैं इसको? अब इसका एक तरीका होता है कि शेयर होल्डर के राइट बदल दो। अब शेयर होल्डर का राइट कैसे बदलते हैं हम? जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर रिडक्शन इन द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, या बढ़ा, उनको घटाना या बढ़ाना, प्रेफरेंस शेयर को रिडक्शन करना, या मतलब प्रेफरेंस शेयर की जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे ठीक, हमने लिखा चेंज इन शेयर होल्डर्स राइट, कन्वर्जन ऑफ 8%, conversion of 8% cumulative preference shares into 6% cumulative preference shares। हमने प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड था वो 8 से 6 कर दिया, तो ये शेयर होल्डर का जो राइट है उसमें चेंज हो गया। तो अब क्या जर्नल एंट्री करेंगे इसकी? 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब अगर पहले भी 10 लाख की थी तो अभी भी 10 लाख रहेगा। शेयर की वैल्यू हमने कम नहीं करी है, ना ज्यादा करी है, खाली रेट ऑफ डिविडेंड 8% से घटा करके 6% कर दिया है। या और कन्वर्जन ऑफ 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इनटू 8% नॉन क्यूमुलेटिव शेयर। हम सब जानते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केसेस में
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पेएबल होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। डिविडेंड जो है अगर कंपनी नहीं देगी तो वो इकट्ठा होता रहेगा और उसके बाद जब भी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो वो जब भी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी तो प्रेफरेंस शेयर को पिछला डिविडेंड भी देगी, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। लायबिलिटी कंपनी की बढ़ती जाती है, तो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के उनकी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करा करके 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कहलाता है चेंज इन शेयर होल्डर्स राइट। क्या कहलाता है ये? चेंज इन शेयर होल्डर्स राइट। तो आपने करा 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू 8% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये सब क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसी के हिसाब से ही हम इसको करेंगे। मेरा ख्याल है समझ में आएगा आपको। कन्वर्जन पहला क्या लिखा? रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। तो हमने करी एंट्री 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर क्यूमुलेटिव से नॉन क्यूमुलेटिव किया तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और हो सकता है कंपनी क्या करे, 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से 6% नॉन क्यूमुलेटिव कर दे, तो होगा 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 6% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो जो भी कंपनी करेगी, जो भी उसमें लिखा होगा, उसके हिसाब से हमें एंट्री पास करनी होगी। So I think that is clear. One thing. Then the second is reduction of share capital. अब हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल की वैल्यू ही कम कर देते हैं। शेयर होल्डर से बात करके शेयर कैपिटल का वैल्यू पेड अप एंड नॉमिनल। नॉमिनल माने कितने रुपए का शेयर है और पेड अप कितना कंपनी ने दिया है, वो दोनों वैल्यूज में चेंज कर सकती है कंपनी। जैसे 10 रुपए का शेयर है, कंपनी उसको घटा करके 2 रुपए का कर सकती है, 8 रुपए का नुकसान शेयर होल्डर को हो गया और कंपनी को 8 रुपए का बुक्स में प्रॉफिट, कंपनी को 8 रुपए का बुक्स में प्रॉफिट हो गया। तो कंपनी जो है वो वैल्यू बदल देती है, कंपनी शेयर होल्डर शेयर कैपिटल की वैल्यू चेंज कर देती। So I think it is clear how this is done, what entries do we have to make, वो अब आपको समझना है। तो आप कैसे एंट्री करेंगे वो आप ध्यान से समझिएगा। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम जो एंट्रीज लिख रहे हैं उनको ऐसे ही लिखना है। आप अपनी मर्जी से एंट्रीज में शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो जैसा है उसको वैसा ही लिखना है। कहीं आप उसको शॉर्टकट इस्तेमाल करने लगे। मैंने लिखा पहला, रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल एंड पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। 10 रुपए का शेयर 2 रुपए और पेड अप वैल्यू भी आपने बदल दी। फॉर एग्जाम्पल, द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, अब हम पढ़ रहे हैं इसको, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एग्रीड टू रिड्यूस द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम 10 rupees fully paid to 2 rupees fully paid. The company had 50,000 equity share of ₹10 each, fully paid. 50,000 शेयर कंपनी के थे, 10 रुपए का शेयर है, तो वैल्यू हो गई 5 लाख। कितनी वैल्यू हो गई?
5 लाख। 5 लाख को कंपनी ने क्या किया, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 2 रुपए कर दिए। कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 2 रुपीज कर दिया। अब 50,000 शेयर 2 रुपए के हुए, तो नई शेयर कैपिटल, द न्यू शेयर कैपिटल इज नाउ 1 लाख रुपीज। कितना हो गया, 1 लाख। So what we do is we open a new account called reconstruction account. We open a new account called reconstruction account. sorry, look, hello. इसलिए गायब भी लिखो ना, मुझे जाना होगा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा पी चुके। नीचे जाके देखना सामान ज्यादा है क्या। पता नहीं पीसू की क्या कर रहा होगा। डोरेमोन को कैसा है? वो खाना नहीं खा रहा, वो तुम्हें बहुत याद करता है और तुमसे बहुत प्यार भी करता है। जैसे रीवैल्यूएशन में एसेट का वैल्यू बढ़ता था तो आप क्रेडिट करते थे, एसेट का वैल्यू कम होता था तो डेबिट, बढ़ गया इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट। इसी तरीके से लायबिलिटी को करते थे, लायबिलिटी रिड्यूस हुई क्रेडिट, डिक्रीज हुई क्रेडिट, और अगर इंक्रीज हो गई तो डेबिट। तो ये हम करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, जो एंट्री मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखी है, अब इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल ₹10, पुरानी नॉमिनल वैल्यू, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल न्यू वैल्यू टू रिकंस्ट्रक्शन। नहीं छोड़ रहा उसे। ठीक है, तो आपने क्या एंट्री करी, शेयर कैपिटल ओल्ड वैल्यू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल न्यू वैल्यू टू रिकंस्ट्रक्शन। जो उस पर प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट होगा तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो जाएगा और लॉस होगा तो डेबिट। इसी तरीके से हमारी हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल न्यू टू रिकंस्ट्रक्शन। ये हम करते हैं। सिमिलरली एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, सुनियो, जल्दी से बाहर आओ, मुझे एक जरूरी बात करनी है। अरे नोबिता, मुझे एसेट की वैल्यू को एप्रिशिएट कर दिया, बढ़ाई, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। आपको लिखना है, आप लिखते जाइए साथ साथ। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ता है। मेरे पापा ने बताया कि किसी ने उसे देखा है। पहली एंट्री हमने करी शेयर की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए, शेयर कैपिटल ओल्ड वैल्यू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल न्यू वैल्यू अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन। अगेन रिपीटिंग, अगर हमने 10 रुपए का शेयर नई वैल्यू 6 में कन्वर्ट कर दिया है
तो 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 4 रुपए विल बी ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो न्यू एंट्री विल बी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट 10 टू शेयर कैपिटल न्यू वैल्यू मैंने 4 अकाउंट यहाँ पे 4 आ जाएगा और रिकंस्ट्रक्शन में 6 रुपए। 10 रुपए का शेयर 4 रुपए। लैंड ये हो गया हमारा नंबर 2। ऐसे लैंड की वैल्यू हमने बढ़ा दी। मुझसे इस तरह बात मत करो, निकल जाओ मेरे तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। बिल्डिंग की वैल्यू हमने बढ़ा दी। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो जो भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी वो यहाँ पे आएगी। हम कंपनी ने एक अरेंजमेंट किया। कुछ नहीं कर पाओगे। कंपनी ने अरेंजमेंट किया आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर या डिवेंचर्स को पेमेंट कर दिया। तो क्या किया जाएगा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर चेक दिया है तो, टू शेयर कैपिटल अगर कंपनी को शेयर दिया है, टू डिवेंचर अगर क्रेडिटर या लायबिलिटी को डिवेंचर नहीं दिए, और अगर कोई वैल्यू कम करी है तो वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्रेडिट। अब जैसे रिडक्शन इन आउटसाइड लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, आपने क्या किया? कंपनी ने क्रेडिटर्स की वैल्यू कम कर दी। 2 कदम आगे रहेंगे। में बनने वाला केलॉग्स और दूध से बच्चों को पावर ऑफ 5 का नरिशमेंट और आपका टाइम। स्ट्रॉन्ग करें केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए में आपने खाया है? है? नहीं, अरे एक बार ट्राई तो करना चाहिए। है? आप बोलोगे तभी मना मत करना। क्रेडिटर्स ने कंपनी से एग्रीमेंट करा कि उनको 1 लाख की जगह उनकी लायबिलिटी 60,000 काउंट कर ली जाए। उनकी लायबिलिटी 60 होने से कंपनी को 40,000 का प्रॉफिट। हमने कहा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 40,000 टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 40,000 रिडक्शन। मुश्किल ना गेम निकालना इजी। नया सर्फ एक्सेल इजी वॉश, इसकी 10 हाथों की शक्ति ऐसी मुश्किलदार निकालना बन जाए इजी। सर्फ एक्सेल इजी वॉश। मॉम्स बेस्ट कैसे चूज करती हैं? इसे पलट के नहीं देखेंगे। इसमें है 18% और 63% ज्यादा। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लान कॉम्प्लान है टीवी के फूड ड्रिंक से 63% ज्यादा प्रोटीन। कॉम्प्लान में 100% मिल्क प्रोटीन और ग्रोथ प्लस मेमोरी को सपोर्ट करेगा। पैक करिए पर देखिए। अगर जिंदगी चाहते हैं सम्राट सुल्तान के हवाले करें। अपनी जिंदगी के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी न दूं। एक ऐसी चीज है जिसे एक बार हर बात सुनना जरूरी है। इन द वैल्यू ऑफ डॉक्टर ने कहा तुम्हें कौन सी मैराथन दौड़नी है? पीएम एंट्री कर देते। तय कर ली। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू मैंने रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद से सपना तय खोला। प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर सिंगिंग से तो जाने पे वाले जो डिविडेंड अनपेड था उसको कंपनी पेमेंट करने की बात करते हैं और शुरू हो जाता है। तो एंट्री करेगी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल अकाउंट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल टू बैंक अगर टैक्स से पेमेंट कराए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अगर इक्विटी शेयर कैपिटल दिए, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर प्रेफरेंस तो अगर डिवेंचर जो भी दिया है सब क्रेडिट। अब ये जो
रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में पैसे आए, ये हमने क्रेडिट करा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट करा पहली एंट्री में, दूसरी में भी रिकंस्ट्रक्शन, तीसरी में रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट करा, फोर्थ में। इस तरीके से जहाँ जहाँ पर भी रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो गया, जो बैलेंस आ गया, दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी टू राइट ऑफ लॉस है। हमने लिखा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू सरप्लस ना कोई कोलैटरल, ना कोई भेदभाव। ऑनलाइन एप्लीकेशन से घर बैठे बिजनेस लोन बोले तो सिर्फ ले। कोरियर सेंटर कहाँ है? तो फिर आपको पता होगा। negative to discount an issue of debenture to goodwill, trademark, patent, to fixed asset, to current asset. Repeat it. Reduction in the value of asset, दिल्ली कहाँ है? चाहे वो फिक्स एसेट हो चाहे वो करंट एसेट हो। तो हमने क्या एंट्री करी? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू preliminary expenses, cost of issue of shares, loss on issue of debentures, debit balance of P&L account, discount on issue of debentures, to goodwill, trademark, patent, copyright, software, media write-off, to fixed assets, to current assets, whatever asset is written on CNC कर दिया। Then expenses on reconstruction to bank, whatever expenses are incurred by the company, reconstruction to bank, and balance of reconstruction account is transferred to capital. Current asset, whatever asset is written on CNC कर दिया। Then expenses on reconstruction to bank, whatever expenses on current asset हो। हमने क्या एंट्री करी? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू preliminary expenses, cost of issue of shares, loss on issue of debentures, debit balance of P&L account, discount on issue of debentures, to goodwill, trademark, patent, copyright, software, media write-off, to fixed assets, to current assets, whatever asset is written on CNC कर दिया। Then expenses on reconstruction, बट कोर्ट ने माना क्योंकि जिलाधिकारी महोदय की डायरेक्शन था और ऑर्डर में स्पेसिफिक लिखा हुआ था कि पार्टी का डायरेक्टेड मतलब पार्टियों को निर्देशित किया जाए वो लोअर कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो। तो लोअर कोर्ट ने माना कि नोटिसों की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल कॉपीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी, उसके बाद आपको जवाब फाइल करने के लिए समुचित समय दिया जाएगा। और यहाँ पर पिछले से ब्रेक का अंतरण हाथ हो। आतंकियों के लिए कड़ा संदेश है।
reconstruction to bank, whatever expenses are incurred by the company, reconstruction to bank, and balance of reconstruction account is transferred to capital. जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। आतंकियों का शिकार हुई टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान, अमरीन भट्ट की हत्या को बताया शर्मनाक। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में महिला टीवी कलाकार पर आतंकी हमला, आतंकियों ने घर में घुसकर फायरिंग की, इलाज के दौरान हुई मौत। टीवी कलाकार अमरीन पर 3 आतंकियों ने किया हमला, हमलावरों ने अमरीन के 10 साल के भतीजे को भी मारी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का प्रचंड प्रहार, डॉक्टर सिंह पाकिस्तानी आतंकी ढेर जम्मू कश्मीर पुलिस का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद पुलिसकर्मी को सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि, आतंकवादी के साथ मुठभेड़ के दौरान की गति को हुए चुका। जम्मू के जमुरा में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, राहुल भट्ट के हत्या के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का लगातार प्रदर्शन जारी, 12 मई को आतंकवादियों ने राहुल भट्ट को गोली मार दी। Reconstruction account debit to capital reserve, and you have to keep points in mind. You have to keep one point in mind. क्या point है वो? In any case, debit side of reconstruction, debit of the reconstruction will never exceed the credit side. क्रेडिट साइड में हो सकता है, लेकिन पर डेबिट साइड जो है वो नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई बैलेंस बचता है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हमने लिखा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो विद दैट अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। ये एंट्रीज में आपके सामने एक बार फिर से रख देता हूँ। ये देखिए, ये एंट्रीज है पहले। पहले 3 है, ध्यान से पढ़िए आप। आप जानते हैं अकाउंट्स में जो जर्नल एंट्रीज होती है और लेजर ही होती है, और अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आते होंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो ये आपका जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें, और जो ये पहले 3 एंट्री, इसके बाद ये 3 नंबर के बाद ये एंट्री है 4, 5। तो नंबर गलत लिखा हुआ है तो आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर के रेंजा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई करी। 20 मई को लखनऊ में होगी अर्जी पर सुनवाई। गाँव में मुद्दा रसाई के एक और करीबी बनेगा, 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को किया गया छूट। कानपुर में 50 रुपए की संपत्ति को प्रशासन ने सीज किया। 50 रुपए की 67 करोड़ की संपत्ति अभी भी जब्त होनी बाकी है। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान 3 लोगों को हार्ट अटैक, उनकी मौत हो गई है। अब तक यात्रा में 33 लोगों की जा चुकी है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और आसपास के इलाकों में बर्फबारी के बाद से तापमान में आई गिरावट। असम गुवाहाटी भारी बारिश में बढ़ाई लोगों की मुसीबत, जगह जगह भरा पानी। गुवाहाटी में सड़कें बनी दरिया, दुकानों से लेकर घरों में पानी घुसा। जलभराव के बीच गुजरने के लिए लोग मजबूर।
असम के नागांव में खतरे के निशान पर कोकिला नदी, 12 से 250 गांव प्रभावित। यूपी के बताने में आकाश से बिजली गिरने से एक शख्स की मौत, मौत के बाद से परिवार में बचा कुबरा। गुजरात में आखिर में आयकर विभाग की टीम एशियन ग्रेनेड इंडिया पर आयकर विभाग का छापा। अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को टक्कर मारी, हादसे मध्य प्रदेश मुरैना में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। घंटों तक बिजली के खंभे पर ही लटका रहा शख्स, ग्रामीणों ने बिजली कंपनी के कर्मचारी को दौड़ा कर पीटा। मनाली में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का शिकंजा, शहर में अवैध कब्जों पर चलाया गया बुलडोजर, अतिक्रमण कार्यों का खतरा। यूपी कुशीनगर में गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 51 किलो अवैध गांजा बरामद। यूपी के बताने में अवैध इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर, ये आप देखिए लास्ट हटाया गया अवैध अतिक्रमण। ये आ गया। यूपी के अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के लखीमपुर में राशन कार्ड वापस कराने के विरोध में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। राशन कार्ड की वापसी को लेकर चल रहे गांव पर किया गया धरना। यूपी के सुल्तानपुर में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। राशन कार्ड की वापसी के विरोध में लगाए जा रहे हैं। यूपी के रायबरेली में हाथ में तख्ती लेकर सिलेंडर करने पहुंचा चौक से अपराधी, आरोपी के ऊपर कोर्ट की तरफ से जारी हुआ। यूपी गाजियाबाद में गाड़ी पलटी, गाड़ी में लगी युवक को नियुक्ति की नोटिस। दिल्ली पुलिस की रोटी बैंक का फर्जी एसआई नोएडा से गिरफ्तार हुआ। उसी के पास से दिल्ली पुलिस का आईडी कार्ड और मोबाइल फोन बरामद। यूपी Now, पर गई पुलिस और बदमाशी की मुठभेड़, आरोपी से 22 तमंचा और कारतूस बरामद। एंट्रीज में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो कोई ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ पहले आपको। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पहले ही तो गड़बड़ हो जाएगी आपको। कौन सा है? हाँ, ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए। पूरा का पूरा ये जो मामला है 1 जुलाई को सुना जाएगा। देखिए और भी बातें जो है वो याचिका में कही गई है कि जो विवादित क्षेत्र है वहाँ पर सीसीटीवी जो है वो लगाया जाना चाहिए। एएसआई की ओर से वहाँ पर पूरा का पूरा सर्वे जो है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए। तमाम बातें देखिए जिसको लेकर 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि यही हमको करना है। तो आपको बता दें समझौते को चार्ज किया गया। इस पूरे मामले को लेकर के शाहीन ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। जो याचिका में बातें कही गई है उस पर हम आपको बता रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट होने के बाद मामले जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा इस तरीके से आपको, और ये मांग की गई। ये लाइन लिखी होगी, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इज जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी वो भी कोर्ट को दिखाई और माननीय जनरल आदि लोगों ने कागज दिखाया, सारी डॉक्यूमेंट्री ऐड है और माननीय जनरल आदि लोगों ने कागज देखने के बाद इंटरनल रीजन हमारा खुद लीगल है और एसओटी कोर्ट ने हमारा खुद को रजिस्टर करने का आदेश पास किए, क्योंकि माननीय जनरल आदि लोगों के अपोजिट पार्टी ऑन द सेंटर रोड ईदगाह ट्रस्ट और जम्मू की ट्रस्ट की ओर से अफेयर थे, तो उनको फर्दर वी आर गिवन अ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आपने चेक करी, वी आर गिवन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की। 100 रुपए का शेयर है तो इसका मतलब 1000 शेयर प्रेफरेंस शेयर हो गए 1000। रिजर्व एंड सरप्लस, अभी देखिए सरप्लस लिखा हुआ है लेकिन नेगेटिव ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नेगेटिव। सरप्लस नेगेटिव हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट, सरप्लस नेगेटिव है, इसको तो मेनली राइट ऑफ करना ही है, तो नेगेटिव सरप्लस। अगला
तरफ से इस्लामी के जा रहे हैं, नेक्स्ट इज उनकी याचिका पर सुनवाई में थोड़ा विलंब हो रहा है। तो हमें दिया हुआ है 1000 प्रेफरेंस शेयर और 70,000 इक्विटी, 7 लाख रुपए के हो गए। नेगेटिव सरप्लस डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट 3 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8% डिबेंचर 3 लाख रुपए। दूसरी भी बातों को उन्होंने की थी और पहले शुद्धिकरण की मांग भी वो कर चुके थे और ये भी कहा था कि जो उन्होंने शुद्धिकरण की मांग की है उसे भी माना जाए, लेकिन ये अब थोड़ी बातें निकल कर सामने कि उनको भी तारीख नहीं मिली है, उनके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने याचिका दाखिल किया, प्रार्थना पत्र दाखिल किए, उस पर क्या होगा उस पर आगे तय किया जाएगा। फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन 31 जुलाई कई याचिकाओं में जिसकी तारीख मिली है, उसके बाद उस पर फैसला तो नहीं, लेकिन सुनवाई ट्रेड पेएबल क्रेडिटर 39 लाख के दे रखे हैं हमको और शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स 3 लाख रुपए है। एसेट में नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 15 लाख रुपए की, करंट एसेट 35 लाख। ये हमको एक बैलेंस शीट बना करके दे रहे हैं। अब मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई, जब आप एंट्रीज करेंगे कराने की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हमारा मेन पर्पस क्या है कि ये जो लॉस है इस लॉस को राइट ऑफ करके, ये जो लॉस है ये लॉस कर्सर आप देख रहे हैं, ये लॉस आपको राइट ऑफ करना है। क्या करना है आपको, ये जो लॉस है 3 लाख रुपए का, ये लॉस आपको राइट ऑफ करना है। और अगर एसेट का कोई ओवर वैल्यूएशन हुआ है तो वो भी करना है। पहला पॉइंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टू बी रिटन डाउन बाय 33 and 1/3। मैंने आपको बताया एसेट्स को रीवैल्यू करने के लिए और लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट का नाम है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन समझ आया आपको? किसी और किताब में कैपिटल रिडक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन सब दे रखा होगा, पर हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के थ्रू ही करना है। ध्यान रखिएगा, हमें क्या इस्तेमाल करना है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हम बनाएंगे। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बेसिक पर्पस होता है टू राइट ऑफ लॉस। क्या होता है बेसिक पर्पस, टू राइट ऑफ लॉसेस। तो ये आपने बनाया अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब पहली एंट्री है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टू बी रिटन डाउन बाय 33 and 1/3 का मतलब हो गया 100/300। 33 and 1/3 को जब आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 100/300 यानी कि 1/3। तो रिड्यूस बाय 1/3 ये कंपनी के लिए नुकसान हो गया। एंट्री विल बी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। क्या हो गई एंट्री, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 लाख। क्लियर है? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 लाख। मौलाना को
छोटा सा ब्रश का वापस लौटने के बाद दिखाई दे स्टार्ट करते हैं अटैक करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देख करते हैं 5 लाख। तो ये काम करिए, आप साथ में एक वर्किंग नोट बना लीजिए और उस वर्किंग नोट का नाम होगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आपने लिखा टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 लाख। ये हमको बहुत काम आता है आपने तो सब अकाउंट। कंपेयर दिया है ना तो आपने पहली एंट्री क्या करी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सुरक्षा प्रोवाइड करता 5 लाख। इसके बाद नहीं ये वो साइड में या अगले पेज पे आपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाया और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आपने लिखा टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आपने क्या लिखा, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट 5 लाख रुपए। अच्छे से देखिए ना तब स्टार्ट दिखेगा क्या कर रहा है पहली एंट्री हो गई। और जो कर रहे हैं तो स्टार्ट ही कर रहे हैं इनका मैं करवाऊंगा टू बी रीवैल्यू एट 67 अच्छे से पैसे की वैल्यू कितनी है 35 है। क्या आपके लिए कंस्ट्रक्शन डेबिट टू current asset account. Reconstruction account debit to current asset account 8 lakh rupees. Reconstruction account debit to current asset account 8 lakh rupees. एक राष्ट्रीय राइफल से है जिसे पूर्वी लद्दाख के मोर्चे पर डिप्लॉय किया गया है। हरियाणा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में लिखा टू करंट एसेट 8 लाख टू करंट एसेट 8 लाख पूरी तरह अरुणाचल की एलएसी की जिम्मेदारी दे दी गई है। नहीं। यानी कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक और गोलियां तीन राउंड चलवाने का काम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर preference shareholder decide हम दो to forgo तीन का चलाना मेरा तो मुश्किल लग रहा है preference shareholder मुश्किल लग रहा है decide to forgo का मतलब cancel, leave, छोड़ देना। preference shareholders decide to forgo their right to arrears of dividend which are in arrears for 3 years। 3 साल से हमने दिया नहीं था, उसको हमने फॉरगो कर दिया। अब इसकी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बुक्स में, ये बैलेंस शीट मन्नत मन्नत जन्नत जैसी लग रही थी। ऐसे भी मन्नत जन्नत जैसी लग रही है और ये जो है ऐसे बंदा जैसे लगती है, पड़े रहो बिस्तर पे, ना मुंह धोना नहाना कुछ नहीं। कोई बार सब खाओ खाओ करता है, ये सब बिस्तर पे पकड़ मन्नत तो जन्नत के जैसी है सुबह देह में हवा लगाएगा फ्रेश रहेगा। वैसे तो लगे सब मुंह धो कर आया कितना चमाचम कर रहा था, अब वैसे गया ऐसे बंदा जैसे वही बंदा उसका मुंह बढ़िया होगा फिर क्या अच्छा बाबा रुक था kedua baru tahu खाना जाना है खाना निकला वो जाओ ना
875 क्या करने आते हैं आपके साथ आपके यहाँ कितने हैं? मम्मी के साथ और श्री के साथ शिव भैया ये स्कूल नहीं जाते हैं स्कूल नहीं जाता है वो तो मैंने स्कूल में एडमिशन नहीं कराया मजा अच्छा ये भी नहीं है अच्छा था पिछली बार हाँ तो मैं कुछ में हमें टाइम लगे मेरी कैब हुआ सब दे दे कुमार जल्दी उठ जा रे खाना निकला हुआ है ऐसे घूम के बैठा है सब सब बदबू कर रहे हैं उठना हिंदी गल हिंदी ये जूली क्या है हाँ जूली क्या है तीन टाइप का सब्जी है तीन टाइप का खाने पहला ये वाला अच्छा लगता है राइट या रॉन्ग आपकी अरे क्या अच्छा लगता है जब बेकार लगता तो नहीं खाती वहाँ से नहीं खाती कभी नहीं नहाया अच्छा शीशा देखे नहीं जाके शीशा देख लेने के बाद मुँह पे पाद दूँ कौन बच्चा कितना फ्रेश है नहीं मैं फ्रेश बन गया इतना बढ़िया कपड़ा है पहनने के लिए वो सब कपड़ा नहीं पसंद है जैसे तू करतो ना सब कपड़ा पसंद नहीं गमले के तरफ खा लेते हैं सुबह को फ्रेश हो जाता धो धा के घूमता कमरे में नहीं इसको अच्छा लगता सब बच्चा दे देखो मटका झोर में जाता सुबह मटका मिल गया झोर मत खाता है मैं पड़े रहूंगा जितना देर तक पड़े रहूंगा आज में 4 सब्जी है जरूरी मोमोर ओ मोमोर आज मोमोर खाने मोमोर खाने मोमोर दोस्त का पानी निकल रही है बैंगन का भुट्टा ये तो नहीं है नहीं बनेगा तो खाते नहीं ये लड़का है ये छिए लड़का है ये लग आज दो हाँ इसमें दही ले आनी रहता बने तो ऐसा तो रोज पे होगा लिया के रहता घर हाँ
भाई मोबाइल का सिलापट्टी सिलापट्टी आता ही ले नहीं है जिला के चौका लगे तो खत्म बंद कर देता और जल्दी भी बन जाएगा मतलब घूमने भी जा पाओगे 6 बजे अगर और 7 बजे शुरू करोगे 8 बजे तक बन जाएगा ना नहीं 8:30 8:30 तक 8:30 नो रोटी तो रोटी आटा भी टोटल 9 हो जाएगा टोटल 9 और मतलब पूरा फ्री सारे फ्री फ्री सारे दोनों हम 8 फ्री हो जाएंगे मुझे ना यानी बच का खाएगा आप दिल्ली को जानते हो फिर तो बताऊँ नहीं हमारे बिहारी चलो दिल्ली से जान पहचान कर लो मैं तो कैसे भी होके खा लीटी होके भी खा उल्टी करके भी अरे 5 टमाटर में एक सही नहीं एक भी सही नहीं है दो देखो पर दो सही है नहीं मुझे 5 लाया नहीं बहुत बढ़िया ये बड़ी बात है ये बताओ ना बड़ी बात है यही बड़ी बात है खीरा 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 किसको खीरा खाने की हाँ दिल्ली खाएगा क्या दिल्ली खाएगी भरता दे दो मम्मा हाँ भरता दे और दिल्ली प्लीज मत टूटो टूट पड़ो पापा ने कारा राखल को कारा टूट पड़ रही है पड़ना क्यों टूट दिया खाए दिया अच्छा झुल्लू झुल्लू आप ऊपर न उठाए थे टूट पड़ो झुल्लू झुल्लू को मजेदार है तो आती है
हाँ रात 3 गो नहीं खेल कर कौन अरे बैठे के बैठा अभी 2 खेल कर और सुबह में 3 चलिए मुर्गा का साथ खत्म होगा युद्ध जारी वही युद्ध जारी है मुझे साथ समझते अगर मैंने नहीं हुआ इसको नहीं रख नहीं रही हो पाएगा तो ठीक है गरम कर लिए ठंड से फ्रिज में रख ले अजली बड़ा खेल ये ले हाँ ले छोड़ने तो लिए रात को हाँ ये तरह से अरे क्यों किया आपने यार यार ये सुबह बहुत खाता है ना रालों ना खाने लोग भी खाएंगे वो रहे करेजी रहे करेजी नहीं वही ये मिला बटर वाला कॉर्न केक बटर कॉर्न बटर हाँ ठंडा तो तुमने तैयार अरे नहीं मैंने पानी पिया था बार बार देखो चार आप बात करना जानते और आप अच्छे अब आपको 2 खेलना नहीं आप बिना तो करना नहीं आप अच्छा तो रहता खाएंगे ना हाँ ये मतलब रहता है ना इधर लिए ना बैंक में भरता नहीं है हाँ हाँ नहीं मजा आ गया वो बैंक में भरता होना चाहिए ना ऐसा ही टेस्ट था टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा फिर क्या मतलब कल क्या था कल मंगल था नहीं वो बुद्धू कल मंगल था कल तो जुली बुद्धू थी बुद्धू कल बुद्धू था आज बृहस्पति है ना वो हर मंगल को हफ्ते में 2 दिन कितना भी लग रहा है पहला है ना हाँ और हफ्ते में 2 दिन कैसे बुध और शनि शनि अगले संडे सब्जी नहीं खा ले इधर तो नहीं चुका है बोझा डाल देता कौन बटन कैसे डालता है बटर पॉपकॉर्न डाल देता देखो मर गया ये आपका दोस्त मुझे सब्जी चाहिए होता है रस के साथ नहीं करता काम इसमें है गुस्सा गुस्सा है वो बोलता है कि भेज दो भेजने को बच्चे में गुल्ली बातुली
P versus G, P versus Z. जेड मतलब जॉम्बी। मतलब ना थोड़ा बहुत बताते रहते हो ताकि आपकी जिंदगी कहीं खराब ना हो। ये पी मतलब अभी नहीं, पी का फुल फॉर्म क्या है? हो गया? पी का एक वीडियो बात नहीं है। किसका? मेरे को आधे में हो जाएगा। हो जाएगा रात के साथ। फाइनल डेट कब आता है? फाइनल डेट तो मुश्किल आसान जानना भूल गए फाइनल डेट कब होता है। पता नहीं मेरे आजूबा में उड़ने वाला आजा कंधा फूला चला। आप बताना मेरे को वापस गई। वो तो मुश्किल है। ठंडी में दूर दूर तक जाती थी। वो पंखा नहीं, पंखा जैसा करना। और अब ये हवा देता है ना। तो हमारी हवा को ये हवा कर देते हैं। क्या? ऐसे कर, ऐसे ऐसे। धुआं के कान पकड़ना ये एक मुहावरा है कि धुआं के कान क्यों पकड़ते हैं? हिम्मत है तो सीधे सीधे पकड़ के दिखाओ। ये देखो क्या ऐसे में। अरे यार इसका हिंदी में पता है। अब तू देख लीजिए तेरा प्रिंटर कैसे निकलता है। फिर मुझे प्रिंटर देखो, देखा कर। अब बस आप देख लेना कि आपको प्रिंटर कैसे निकलता है। मैं अभी नाम बदलता हूँ अपना अगर प्रिंटर निकाल लिया आज नहीं ऐसे नहीं है। आज की बात नहीं करो, कभी भी निकल सकता है। आज आपको प्रिंटर नहीं निकलता कल निकल आज तो मुश्किल है। कोई दिक्कत नहीं। आज डेट कितनी है भैया? आज मुझे 26 तारीख 26 तारीख 26 24 25 तारीख 26 हो गया। बताओ क्या कर लोगे आप? अभी तो बहुत समय पूरा महीना भी बाकी है आगे का। 30 दिन आपका पूरा बाकी है। 1 महीना तो जुलाई में खुलेगा ना? अभी तो मई चल रहा है, जून पूरा बाकी है, मुझे जुलाई लगा अगले महीने। अगले महीने आप मजे करते हैं। चलिए आज का आज प्रिंट आउट निकलवा इसका। आप देख लेना कैसे निकलता है प्रिंटर आपका। मेरे को नहीं निकलता अब बोलना भी मत क्योंकि देखना अभी पूरा महीना बाकी है तो कभी तब निकलवा लेंगे।
दिन तो 30 दिन बाकी है ना, और आगे का भी, आगे महीने का भी, अभी मई चल रहा है, जून पूरा बाकी, जुलाई का भी 4-5 दिन बाद ही खुलेगा, तो टेंशन की जरूरत नहीं ले है, जाओ 1 महीना बाद ही खुलेगा। बोल दो आज चाहिए, मतलब चाहिए। अब आगे ले। एक नॉर्मल यहाँ पे ऐसे अम्मा आगे पैसे रखते हैं ना, पैक करना पीछे लगाओ, पीछे लगाओ, उसे पूरी को खाते पीछे बटर लगाओ, पीछे बटर लगाओ, खुपरी को पीछे बटर लगाओ, देखना कितना खा सकता है। क्या बोलो, उसे पकड़ो पकड़ो, बटर लगाओ। मैं क्या बोलता हूँ तुमको, भटूरा वाला लगाओ, भटूरा वाला लगाओ। आप प्रिंट का देख लो क्या होना प्रिंट का, ये क्यों नहीं आ रहा है बता। मेरा सब यहाँ पे बैठा प्रिंट आउट का देखो क्या है। मेरा सब मुझे यहाँ पे 350 पाउंड की ड्रेस तक नहीं मिल रहा है। क्या बोलना है? इसके पेटी में बटर फेंको। तो बटन का पूरे टॉप पे है। बिनता गलों कौन करूँ? गरुड़, हाँ गरुड़, ब्रह्मपुत्र गरुड़, मम्मी पुत्र चुन्नी। क्या करूँ? मैंने अभी इससे करके इन दोनों से और इनकी मिर्ची। 2 उंगली हाथ में नाप ले, है ना, आधा आधा आधा। है। आधी मतलब ये छोटी सी कंगुलिया उंगली। कंगुलिया, इसलिए हम लोग भी सब देखते हैं बार कंगुलिया वाली, हाँ। जो आप मर गए थे पूरी नहीं पता थी। कंगुलिया वाली शक्ल। मम्मी किसी में किस इससे पूछो इसका था ये बताया है तेरे था आवाज तक नहीं दोबारा आवाज तक नहीं। हाँ वो तो ठीक है, बात कर रही है।